Hello everyone. Good morning. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. So I can't see any good morning coming up in the chat box. Now I can see. Yes. Okay. Very good morning, everyone. So welcome to this session today. Yesterday we started off with some concepts like the different tokens. Okay. Before I start with the session, I request you all to please close your eyes and just try to remember what we studied yesterday. So Tripti, your camera is on, beta, please. हाँ. Okay. तो सब लोग एक बार आंखें बंद करो और याद करो कल हमने क्या क्या पढ़ाई किया था. Just try to remember, and once you are done, please type D for done in the chat box. This will eventually increase your memory power also. So are we done? याद आया सबको कल क्या पढ़ाई किया था हमने? चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट. Yes, so yesterday we had started off with the means whenever we are learning a language, we need to understand the vocabulary and the grammar. So vocabulary is termed as tokens, which are the small building blocks of our program, and grammar is the rules how we put the tokens together. So after that, we were discussing that the different tokens that we will coming across would be variables, identifiers, operators, keywords, special symbols, literals, data types. So what are variables? So variables will be something whose value can change, right? So age, speed, price, weight, these can be considered as variables. Identifier is some name that we are giving to the elements of our program, जिससे हम उसको पहचान सके. That will be considered as the identifier. Then we discussed about the keywords. So keywords are the reserved words. So they are used for specific purpose. We can use them for that purpose and we should not change the purpose, right? और उसके बाद हमने देखा था कुछ स्पेशल सिंबल्स भी हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे. डेटा टाइप क्या बताता है? what kind of data we are going to store and how much memory we are going to reserve, right? So that will be the part of the data type. Okay. And after that, we were discussing about when we are going to store the data, then the smallest unit of storing the data is considered as bits. तो बिट क्या होता है? 0 और 1. 8 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 1 बाइट होता है. एंड देन ऑनवर्ड्स 1024 बाइट इज 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इज 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इज 1 टेराबाइट. ठीक है, ये कल मैंने आपको लिखने को बोला था. आई होप यू ऑल हैव डन दैट. सबने किया क्या?
So first one we discussed was the arithmetic operator. So we have addition, subtraction, division. Division में हमने दो वेरिएशन देखे थे, एक नॉर्मल डिवीजन, एक फ्लोर डिवीजन. देन मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशिएशन एंड मॉड. तो नॉर्मल देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन तक तो ठीक है. नॉर्मल डिवीजन में क्या होगा, जैसे 5 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर फ्लोट में आएगा, दैट इज 2.5. लेकिन फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, अगर आप 5/2 करते हो, इट इज फ्लोर डिवीजन, तो आंसर पॉइंट में नहीं इंटीजर में आएगा. तो कल हमने ये दो डेटा टाइप भी डिस्कस किए थे, इंटीजर और फ्लोट. ये नंबर्स के अंदर आते हैं. इंटीजर मतलब क्या होगा कि जो डेटा है वो कंप्लीट नंबर में रहेगा, उसमें फ्रैक्शंस नहीं रहेंगे. whereas float is where we get the point, decimal value रहेगी, तो वो float कहलाएगा. So I hope everyone is okay with the floor and division and normal division. फिर मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर. सो whenever we want to calculate say 3 to the power 7, तो 3 to the power 7 को हम कैसे लिखेंगे, 3 asterisk asterisk 7, so that will be 3 to the power 7, राइट. और मॉड ऑपरेटर है तो 7 mod 3, that will give us the remainder. ये कल हमने देखा था. So everyone is okay till this point? If yes, can you please type C for clear in the chat box? All right. So now let's go for the next category of operator, that is the relational operator. So relational operator, or we also call them as comparison operator. So comparison operator will be greater than, less than, greater than equal to, less than equal to. Sorry. The next category of operator will be assignment operator. असाइनमेंट पहले सिखाना जरूरी है, नहीं तो गाड़ी हमारी अटक जाती है. असाइनमेंट ऑपरेटर इज लाइक दिस. Okay, so when I write x is equal to y, what do we understand by this? कि हमारे पास ऐसा मेमोरी ब्लॉक्स हैं. बाद में थोड़ा सा और डिटेल में मैं लेके जाऊंगी आपको, अभी के लिए जस्ट थोड़ा सा समझ में आने के लिए. सो लेट्स से देयर इज अ मेमोरी ब्लॉक से 100, देयर इज अ मेमोरी ब्लॉक से 200, इसके पास 10 है. तो अगर आपने y ऐसे बोला तो ये वैल्यू इधर जा रही है. अभी के लिए ऐसे समझ लो, बाद में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी. पाइथन में थोड़ा सा अलग तरीके से ये चीज होती है, ठीक है. सो दैट आई विल एक्सप्लेन व्हेन वी स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग. जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रूफ के साथ ये दिखाऊंगी मैं कैसे पाइथन में वर्क होता है ये चीज. अभी के लिए सिंपल कर रही हूँ मैं कि द वैल्यू ऑफ y इज बीइंग असाइन टू x. तो जो भी y में है वो x में जा रहा है, तो यहाँ 10 में था तो यहाँ पे भी 10 आ रहा है, ठीक है. दैट इज द रोल ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. नाउ द नेक्स्ट वन इज x प्लस इक्वल्स टू y. सो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू x प्लस y. मतलब जो भी x और y में है, अभी आप x और y को देखो, x में कितना है 10, y में कितना है 20, तो x प्लस y कितना होगा 20. दैट इज बीइंग असाइन टू x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20. सो दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय राइटिंग लाइक दिस. सो लेट्स से आई एम राइटिंग हियर सम इज इक्वल टू सम प्लस 3. तो मान लीजिए अभी सम में 10 है, सो 10 प्लस 3 कितना होगा 13. सो दैट 13 विल गो इनटू सम. ये मतलब होता है सम प्लस इक्वल्स टू 3 का मतलब. समझ में आ रहा है सबको? दिस कैन बी एक्सपैंडेड लाइक दिस. तो ये एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं शॉर्टकट ऑपरेशन है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट x प्लस इज इक्वल टू 13 या मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगा, x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 13. तो x की जो भी वैल्यू है, मान लीजिए अभी x की वैल्यू 10 है, सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 13 दैट इज इक्वल टू 130, दैट विल बी असाइन टू x. तो ये प्लस इक्वल्स टू आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? तो वो वैसे ही माइनस इक्वल टू हो सकता है, डिवीजन इक्वल टू हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू हो सकता है, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू हो सकता है, मॉड इक्वल टू ऐसे भी हो सकता है. सो लेट मी राइट इट से x mod equal to 3. Can you tell me how you will write it in an expanded format, everyone?
x इज इक्वल टू x मॉड 3. परफेक्ट. ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर सबको. Yes, so now we will go ahead with the next one, that is the relational operator. So relational operator में relational या फिर इसको हम और एक नाम क्या बोलते हैं, comparison operator. कंपेयर करने के लिए यूज होता है. ओके, तो जब हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि x ग्रेटर देन y, सो हियर आई एम ट्राइंग टू कंपेयर वेदर x इज ग्रेटर देन y, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ सकता है, आइदर द आंसर विल बी ट्रू और द आंसर विल बी फॉल्स. यस और नो, या तो x बड़ा होगा y से या नहीं बड़ा होगा, ये दो ही पॉसिबिलिटी है. तो आंसर इज ट्रू और फॉल्स. गॉट इट एवरीवन? मतलब अभी जैसे कोई पर्सन है, अभी मुझे चेक करना है कि ही इज एलिजिबल टू वोट और नॉट, वोट के लिए एलिजिबल है कि नहीं. तो कैसे चेक करेंगे बताओ? हाउ यू आर गोइंग टू टेल मी वेदर दिस पर्सन कैन गिव वोट और नॉट? किससे कंपेयर करोगे उसके एज के? तृप्ति, प्रीति, प्रणव, वल्लभ, अक्षता. आज बहुत सन्नाटा लग रहा है क्लास में, क्या बात है? मेरी आवाज आ रही है? यस, हेलो वल्लभ, गुड मॉर्निंग. प्रणव, प्रीति, तृप्ति, गौरवी, आकांक्ष, अक्षता, गुड मॉर्निंग. आज तुम लोग बात नहीं कर रहे हो, क्या बात है? थोड़ा रिप्लाई धीरे धीरे आ रहा है. इज देयर सम नेटवर्क इश्यू और समथिंग? समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? अभी तक जो हुआ समझ में आ रहा है? यस, सो थैंक यू. थोड़ा इंटरेक्ट करो, मजा आता है पढ़ाने में. ठीक है, ओके. यस, सो व्हेन वी आर डूइंग अ कंपैरिजन, x को हमने y से अगर कंपेयर किया और यदि x बड़ा है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आएगा. तो कल जो हमने दो डेटा टाइप पढ़े थे, कल मैंने आपको इंट सिखाया था और फ्लोट सिखाया था, रिमेम्बर? तो अभी ये नेक्स्ट डेटा टाइप है, दैट इज अ बुलियन डेटा टाइप. तो बुलियन का जो वैल्यू होता है वो या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है. सो दिस इज अनदर डेटा टाइप इन पाइथन विच इज ट्रू और फॉल्स. ओके, तो आज तीसरा डेटा टाइप हमने पढ़ा, दैट इज बुलियन डेटा टाइप इन पाइथन. ओके, तो जो रिजल्ट होता है कंपैरिजन ऑपरेटर का, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स. सो अब यदि मुझे चेक करना है x इज लेस देन y, so we will use the less than operator. x is greater than equal to y, suppose we are writing like this. So greater than equal to y मतलब कि x की वैल्यू y से या तो बड़ी भी हो सकती है या बराबर भी हो सकती है. So in that case we will get the result as true or false. मतलब बड़ा भी होगा तो भी चलेगा, बराबर भी होगा तो भी चलेगा. For example, hold on, I have, यहाँ पे है x और यहाँ पे है y. x की वैल्यू है मान लीजिए 10 और y की वैल्यू है मान लीजिए 15. So you will understand that yes, x is greater than y. तो इस केस में आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा. अब ये वाली कंडीशन देखो, x is greater than equal to y. आई एम सो सॉरी, ये ऐसा है ना सिचुएशन. सो इन दिस केस x is less than y, तो ये ट्रू आएगा. बट अब ये वाला कंडीशन देखो, तो 10 greater than equal to y, that is 15. So the answer will come out to be false. अगर मैंने इसको 100 कर दिया, so let's say this is 100, so now it is going to become true. और इस तरफ भी अगर मैंने 100 लिख दिया तो इक्वल है तो भी ट्रू आएगा. समझ में आ रहा है? इक्वल के लिए भी ट्रू और ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन है तो भी ट्रू आएगा. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉट इक्वल टू, व्हेन x एंड y आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. तो अभी के केस में देखो, यहाँ 100 है और यहाँ 15 है.
सो यस एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल, तो ये ट्रू आ जाएगा। और डबल इक्वल टू इज फॉर इक्वालिटी कंपैरिजन, दोनों बराबर हैं क्या, तो यदि x और y बराबर है, मतलब इसका भी वैल्यू 10 है, इसका भी वैल्यू 10 है, तो आंसर ट्रू आएगा। एक का वैल्यू 10 है, दूसरे का 100 है, तो आंसर फॉल्स आएगा। सो प्लीज कंफर्म एवरीवन, ये कंपैरिजन ऑपरेटर सब समझ में आ रहा है आपको? ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, logical operator. So the different logical operators that we have are and, or, and not. ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तो इसको समझने के लिए लेट्स से यू हैव टू गो टू द एग्जाम। तो एग्जाम में आपसे बोला जाता है कि आपको हॉल टिकट लाना है और आपको आईडी कार्ड भी लाना है। होता है ना, तुम एग्जाम के लिए जाते हो तो बोलते हैं ना, हॉल टिकट भी चाहिए, आईडी कार्ड भी चाहिए। अब आप जब जैसे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हो तो आपको पूछा जाता है हॉल टिकट है, यस, आईडी कार्ड है, यस, तो आप एग्जाम देने जा सकते हो, यस। ये एक सिनेरियो हो गया। फिर से पूछा आपको हॉल टिकट है, नो, आईडी कार्ड है, यस, तो एग्जाम देने जा पाओगे या नहीं जा पाओगे? समझो रूल एकदम स्ट्रिक्ट है कि नहीं, मतलब दोनों चाहिए, कंपलसरी चाहिए, तो आपको नहीं जाने को मिलेगा। तो आंसर क्या आ गया? नो। आपके पास हॉल टिकट है लेकिन आईडी कार्ड नहीं है, तो भी नहीं जाने को मिलेगा। और आपके पास हॉल टिकट भी नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, तो बिल्कुल 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 नहीं जाने मिलेगा। ठीक है, तो बाकी सब केसेस में आप आंसर देखो क्या आ रहा है, नो। सिर्फ एक ही केस में आंसर आ रहा है यस। सो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेटर, दैट इज द एंड। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि पहला वाला जो अपना कंडीशन है दैट इज कंडीशन 1, दूसरा वाला है कंडीशन 2, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है, सो फाइनल रिजल्ट इज एंड, मतलब कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स। बोथ ट्रू देन ट्रू, करेक्ट। तो एक ही सिचुएशन है जहां पर आप का रिजल्ट ट्रू आ रहा है, बाकी सब जगह पे आंसर फॉल्स आएगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? एंड समझ में आ गया आपको? तो ऐसा और कहीं पे और ऐसा एग्जांपल बता सकते हो मुझे जहां आप देखते हो कि एंड ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है? कैन यू जस्ट थिंक फ्रॉम द रियल लाइफ सिनेरियो? अभी आजकल आप देखो बहुत सारे जगह पे, जैसे कि ट्रैवल आप कर रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो या इवन ट्रेन में भी, वो लोग टिकट भी चेक करते हैं और आधार कार्ड भी चेक करते हैं, देखा है आपने? आईडी प्रूफ भी चेक करते हैं, जो पर्सन है वो सही में वो ही है कि नहीं, ये भी वेरीफाई होता है ना। तो आपको टिकट भी दिखाना है, आपको आईडी प्रूफ भी दिखाना है, अगर हाँ तो ही आप ट्रैवल कर सकते हो। आईडी प्रूफ मिसिंग है तो फिर मे नॉट बी अलाउड, ऐसा होता है। एटीएम मशीन वल्लभ बोल रहा है, एटीएम मशीन में क्या वल्लभ? कार्ड नंबर एंड पिन, कार्ड नंबर एंड पिन, कार्ड एंड पिन चाहिए। हम्म, ये एग्जांपल यहाँ पे एक्चुअली मैच नहीं हो रहा है वल्लभ, क्योंकि कार्ड तो कंपलसरी चाहिए और पिन एक्चुअली लॉगिन के लिए हम लोग जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें, ठीक है, कार्ड का डिटेल्स एंड पिन, ओके, लेट्स टेक दैट। या फिर उसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ वल्लभ, प्रोग्रामिंग के एंगल से, कि आप लॉगिन करते हो, फॉर एग्जांपल जीमेल पे आप लॉगिन करते हो, तो आप लॉगिन आईडी डालते हो और पासवर्ड डालते हो, तो लॉगिन आईडी भी सही होना चाहिए, पासवर्ड भी सही होना चाहिए, दोनों सही होने चाहिए, तभी आप लॉगिन कर पाओगे। दोनों में से एक भी रॉन्ग है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कैन वी टेक इट लाइक दैट?
सो आई होप नाउ यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड. बहुत सारे जगह पे एंड यूज होता है अपने को. ठीक है. परमिशन फ्रॉम मॉम एंड डैड. ये तो जरूरी नहीं है. मम्मी धीरे से मम्मी को मस्का मार के सब लोग निकल लेते हैं. डैड ने ना भी बोला तो, या डैड ने मम्मी ने ना बोला तो डैड को मस्का मार के निकल लेते हैं. तो ये और ऑपरेटर वाला है तुम जो बता रहे हो. ठीक है प्रणव, सही है कि नहीं बताओ. मेरे घर एंड है. अच्छा तुम्हारे घर पे एंड है. ज्यादातर फैमिलीज में और होता है. बाकी लोग बताएंगे. यस. प्रीति, प्राची विल कंफर्म. वल्लभ, तुम्हारे घर में एंड है कि और है? मम्मी या डैडी? हाँ देखो, ज्यादातर और ही रहता है. एक ने ना बोला तो दूसरे को मस्का मार के निकल लेते हैं. बच्चे लोग आजकल स्मार्ट होते हैं. प्रणव को थोड़ा सा ट्रेनिंग देना पड़ेगा अलग से. सेपरेट ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग इज नीडेड फॉर प्रणव. कैसे मस्का कैसे मारते हैं. मॉम हैज सॉफ्ट हार्ट. हाँ, और जहाँ पे नहीं होता है, मम्मी लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं, वहां डैडी लोग सॉफ्ट हो जाते हैं. कैसे भी करके बच्चे तो अपना काम निकाल ही लेते हैं. वो तो जाने ही दो. ओके, so let's go for the next one, that is or. yes. तो और के लिए एग्जाम्पल. और मतलब कैसा कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम का ही. अभी एग्जाम एक ऐसी चीज है जहां पर थोड़ा सा करियर का सवाल रहता है. तो चलो हमने ऐसे रिलैक्स कर दिया. या तो आईडी कार्ड दिखाओ या हॉल टिकट दिखाओ. दोनों में से कुछ भी होगा तो अलाउड है. तो हॉल टिकट है क्या? यस. आईडी कार्ड है क्या? यस. तो अलाउड है. हॉल टिकट है क्या? यस. आईडी कार्ड है क्या? नो. तो भी अलाउड है. हॉल टिकट है क्या? नो. आई कार्ड है? यस. तो अलाउड. हॉल टिकट भी नहीं है, आई कार्ड भी नहीं है, तो हम अलाउ करेंगे क्या? सो दैट इज और ऑपरेटर. ठीक है. तो और ऑपरेटर में again, so here we have say condition 1, condition 2, or. So condition 1 is true, condition 2 is also true, so the result will be true. तो अभी यहाँ पर अगर एक कंडीशन फॉल्स आ गई तो ये फॉल्स. दिस इज फॉल्स, द रिजल्ट विल बी फॉल्स. दोनों भी फॉल्स है तो डेफिनेटली द रिजल्ट इज फॉल्स. 10th 12th और डिप्लोमा. 11th 12th और डिप्लोमा. 11th 12th और डिप्लोमा ऐसे तो कहीं नहीं होता है. 11th 12th और डिप्लोमा. अच्छा 11th 12th होना चाहिए मैम. दिस इज एंड कंडीशन मैम. नहीं वो ठीक बोल रहा है. मैं एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स टेक इट फॉर इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 12th होना चाहिए आपका. अगर आप 12th पास हो तो आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो. या फिर तो उसने 10th और 11th दोनों बोला है. 11th 12th आप करके फिर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो. कभी कभी बच्चे लोग 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं. राइट. सो डिप्लोमा करते हैं और डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली वो इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं क्योंकि डिप्लोमा भी 3 इयर्स का रहता है. तो वो ऐसे भी वो 10+3 में चले जाते हैं तो वो भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं. सो आइदर दिस और दिस यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग. यस वल्लभ, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. ठीक है प्राची, समझ में आया? तो या तो आपका 12th तक का होना चाहिए या आपको डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए. तो यहाँ पे और. हाँ बोलो. ऊपर जो आपने कंडीशन लिखी है ना और की, ट्रू फॉल्स फॉल्स, वो तो एंड की कंडीशन है ना. वन अरे फॉल्स अरे टू अरे फॉल्स. अरे 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 तो मेरी मैं मेरी बोल मेरी रही थी. मिस्टेक. हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी. हाँ. थैंक यू फॉर द करेक्शन. ध्यान नहीं था मेरा. अच्छा हो गया. स्टूडेंट्स अलर्ट रहने का कितना फायदा है देखो. यस.
So OR part is also clear, everyone? If yes, can you please type C for clear in the chat box? Yes, ma'am. Yes. अभी नेक्स्ट आते हैं हम नॉट पे. So not is just opposite of whatever is the existing condition. For example, true है तो true को अगर आप not लगाओगे तो वो false हो जाएगा, होगे तो वो true हो जाएगा. So it will just invert the condition. तो true का false और false का true हो जाएगा. Is that clear, everyone? तो यहाँ तक हो गया. ये अपना कौन सा ऑपरेटर हो गया? लॉजिकल ऑपरेटर हो गया. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है ऑपरेटर की, बताओ. व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेटर? किसी को याद है क्या कल का लिस्ट? बिटवाइज ही है नेक्स्ट. ठीक है, सो बिटवाइज ऑपरेटर. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा सा आपको एकदम बेसिक पे वापस लेके जाऊंगी मैं. ठीक है, सो बिटवाइज ऑपरेटर समझने के लिए पहले तो कौन कौन से हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स वो जरा हम लिख लेते हैं. सो बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज shifting operators, left shift, right shift operators, complement, XOR. So these are the different bitwise operators. Now to understand the bitwise operators, we need to have a bit of understanding of binary number system. तो अब पेन पेपर के साथ सब लोग हैं मेरे साथ? एवरीबडी इज विद पेन एंड. अब आज से आपको सबको पेन पेपर के साथ ही बैठना है मेरे साथ. ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम साथ में सॉल्व भी करेंगे. So let's take some number. So let's say the number is 43 suppose. तो ये 43 नंबर है. ये नंबर है अपना डेसिमल में. अब इसका मुझे निकालना है बाइनरी इक्विवेलेंट. बाइनरी मतलब 1010 फॉर्मेट में इसको लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? 43 को आप क्या करो, ऐसे बना लो एक टेबल जैसा ऐसा. अब उसको 2 से डिवाइड करना है. सो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. तो यहाँ पे आ गया 1. रिमाइंडर को यहाँ लिखते जाना है. 2 1 ज़ार, 2 0 ज़ार. कितना आ गया रिमाइंडर? फिर से 1. 2 5 ज़ार 10. नो रिमाइंडर, नो रिमाइंडर है तो 0 लिखो. 2 2 ज़ा 4, 1 इज द रिमाइंडर. 2 1 ज़ार 2, नो रिमाइंडर. 2 0 ज़ार 1, 2 0 ज़ार 0, 1 इज द रिमाइंडर. पहले ऐसे लिख दिया. अब इसको उल्टे डायरेक्शन में लिखना है, मतलब यहां से शुरू करना है. सो 1 0 1 0 1 1. दैट विल बी द बाइनरी ऑफ 43. ठीक है, अभी आपको समझ में आया नहीं आया है? लेट्स वेरीफाई. सो लेट मी गिव यू अ नंबर 37. एवरीवन प्लीज गो अहेड एंड ट्राई दिस. 37 का बाइनरी कितना आएगा? चलो सॉल्व करो. और कोई भी आंसर चैट बॉक्स में नहीं डालेगा. आपको सिर्फ डन हो गया तो डी फॉर डन टाइप करना है. ओके, सो प्लीज डू नॉट टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स. व्हेन आई विल आस्क यू दैट टाइम यू विल पोस्ट द आंसर. ठीक है, इससे क्या होता है, बाकी लोग कंफ्यूज होते हैं तो उनको भी सबको सॉल्व करने दो. इससे तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया. ठीक है, कर पा रहे हो तो समझ में आया, नहीं कर पा रहे हो तो नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से समझाऊंगी. ठीक है ना? हो गया, कुछ लोगों का हो गया है. So I got a confirmation from Vallabh, Preeti and Prachi. Others? Trupti और कौन है?
गौरवी, अक्षता, प्रणव। ओके चलो अभी हो गया तो अच्छी बात है। और अभी देखो आप लोग 37 को आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो। 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो यहाँ पे 1 आएगा। 2 9 जार 18, 0 is the remainder. 2 4s are 8, 1 is the remainder. So here we will get 1 0 0 1 0 1. That is the answer. तो जिनका आ गया था, वल्लभ, प्रीति, प्राची, गौरवी, आप अपना अपना आंसर चेक करो। ये आंसर आ रहा है आपका? आई होप आई डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक। पता चला मेरा ही रॉन्ग है, ऐसा ना हो। ठीक है सबका आंसर? तो जिनका नहीं हुआ था उनको समझ में आ गया। सो कैन आई हैव अ यू फॉर अंडरस्टूड फ्रॉम एवरीवन? और एक बात बता दूं, इसमें अपने को पीएचडी नहीं करना है, ठीक है? इतना बस सब कर लिया ना, बस बहुत हो जाएगा, ठीक है? तो ओनली दिस मच वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑपरेटर समझना है, तो बाइनरी नहीं पकड़ेंगे तो आएगा नहीं अपने को समझ में, ठीक है? तो अभी बाइनरी निकालना आ गया। नाउ हाउ टू क्रॉस चेक मेरा आंसर सही है या गलत है, ये कैसे चेक करेंगे? सो फर्स्ट यू राइट डाउन द बाइनरी, जो भी बाइनरी है, फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 0 1 मान लीजिए ये है, इसको आप उल्टे क्रम में नंबरिंग करो, 0 1 2 3 4। ये जो लिखा है ये एक्चुअली 2 के पावर्स हैं। सो 2 to the power 0 is 1, 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16। तो जहां 0 है उसको कट कर दो, उसको लेना ही नहीं है, तो बाकी सबको ऐड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 21। लेट्स डू इट विद दिस वन। तो 1 0 0 1 0 1। तो अभी क्या करोगे? 0 1 2 3 4 5। तो 2 के पावर्स लिख दो। तो 2 to the power 5 is 32, और फिर 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 0 is 1। बाकी सब तो 0 है, उसको रहने दो। सो 32 plus 5 is 37। सो कैन यू डू इट फॉर दिस वन? ये वाले को सॉल्व करो और आंसर देखो आपका 43 आ रहा है क्या? एवरीवन प्लीज चेक। समझ में आया क्या ये प्रोसीजर आपको? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड इट? लेट मी जस्ट आस्क एवरीवन। अक्षता, चिन्मय, चिन्मय तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे अभी तक। चिन्मय, गौरवी, ओमकार, प्राची, प्रणव, प्रीति, सौरभ, तृप्ति, वल्लभ, वैभव, विशाल। You people, Vishal and Chinmay, are you new in the class today? First time? Okay, attending for the first time. So are you added in a specific group? Telegram group पे आप हो? विशाल, are you also attending for the first time? तो जो भी ग्रुप पे आप हो, अभी तक जितने सेशंस हुए उसके सारे रिकॉर्डिंग्स है वहां पे, ठीक है? तो एक बार रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लेना। प्राची भी न्यू है? अच्छा प्राची, तो प्राची तो मैंने पहले भी देखा था क्लास में। अच्छा ओके, तो जो भी नए मेंबर्स हैं वो आप किसी ना किसी ग्रुप पे तो हो ना, इंश्योर करो। अगर नहीं हो तो मुझे बताओ, और अगर ग्रुप में एडेड हो तो हर ग्रुप में फर्स्ट डे से अभी तक का सारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, सो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स, ऑलराइट? सो यू विल कैच अप एंड बी विद अस। ये कहाँ से हो गया? ओके, सो आई थिंक एवरीवन इज ओके टिल दिस पॉइंट कि डेटा जो भी दिया है उसको बाइनरी
में कैसे कन्वर्ट करना है और बाइनरी से वापस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है. नाउ लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस द बिटवाइज एंड ऑपरेटर. तो ये जो ऑपरेटर होता है दिस इज कॉल्ड एज बिटवाइज एंड. तो इसका सिंपल फंडा क्या है? 1 and 1 is 1. 1 and 0 is 0. 0 and 1 is 0. 0 and 0 is 0. ठीक है. तो अब ये कैसे समझ में आएगा? हमारे पास देखो दो नंबर्स थे, कौन से थे? 43 और 37. सो लेट मी टेक इट एज 43 एंड 37 करना है. तो आप पहले 43 का बाइनरी लिखो और 37 का बाइनरी लिखो. तो 43 का बाइनरी कितना था? 101011. 101011 एंड अभी 37 का बाइनरी तो 100101. 100101. देखो 1 and 1 1 आएगा. 1 and 0 0. 0 and 1 0. 1 and 0 0 0 1. दिस इज द आंसर. तो अभी आंसर कितना आएगा? 0 1 2 3 4 5. So this is 32, this is 1. So answer will be 33. So let me give you one question to solve. Chalo. 34 and 26. Yes, everyone, please solve this. 34 and 26. थोड़ा सा ब्रेन का एक्सरसाइज होगा. एंड एज आई सेड, आज जो जितना सॉल्व करेंगे उतना बस है, उसके बाद इसको पलट के देखना भी नहीं है. सिर्फ एक बार रिवीजन कर लेना कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करते हैं इंटरव्यू में जाने से पहले. दैट्स इट. उससे ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है. इसका यूज कहाँ पे होता है वो भी समझाती हूँ, बट अभी के लिए इतना करके रखो. So first you will convert 34 into binary and 26 into binary. हो जाएगा तो D for done लिखोगे चैट बॉक्स में. ओके, सो सम स्टूडेंट्स आर डन. तो पहले हम लोग 34 का बाइनरी निकालेंगे. Two 8s are 16. 2 4s are so the binary will be 1000010 and then we will have 26. डन, वेरी गुड. तो अभी ये क्या आएगा? 01011. तो जहाँ डिजिट नहीं है वहां पे आप 0 लिख सकते हो. अब इस पे एंड अप्लाई करना है. तो 0 and 0 is 0. 1 and 1 is 1. 0 0 0 0. So this is actually equivalent of 2. तुम सॉल्व करके देखोगे.
So when you go for 34 and 26, the answer is going to be 2. जिन्होंने डन लिखा था उनका 2 आंसर आ रहा है या फिर 10 ऐसा आ रहा है आंसर? ओके कूल. तो मेरे ख्याल से एंड ऑपरेटर सबको समझ में आ गया. Now let's go ahead with the next one, that is OR operator. So this is bitwise OR. Okay, so bitwise OR कैसे काम करेगा? 1 और 1 is equal to 1. 1 और 0 is also 1. 0 और 1 is also 1. 0 और 0 is 0. तो अभी वही डेटा जो अपने पास था पुराना वाला, जैसे कि 43 और 37 करना है अपने को. सो 101011 और 100101. तो अभी ये भी 1 आएगा, ये 1 आएगा, 1101. सो 0 1 2 3 4 5. सो एज आई सेड इसको छोड़ देना है. सो दिस विल बी 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1. So 32 plus 8 is 40, 49. So the result will be 49. So can you try this everyone? कौन सा एक और नंबर बोला था मैंने? 34 और 26. देखो इसका बाइनरी यहाँ लिखा हुआ है, इसका और आप अप्लाई करो, और में कितना आंसर आता है देखो. यस, आ रहा है समझ में? 34 और 26 निकालना है. Okay, Vallabh is done. What about others? तो ये वाला जो डेटा है 1 ट्रिपल 0 1 0 0 1 1 0 1 0. So if you apply the OR, तो यहाँ पे 0 1 0 1 1 1, you'll get this one. So 0 1 2 3 4 5. So this will be 32 plus 16 plus 8 plus 2. So this will be 40, 50, 58 is the answer. Correct? सही बोला ना मैंने? Everyone, can you please confirm 58 is the answer? Yes. ठीक है, समझ में आया सबको? बिटवाइज एंड और बिटवाइज और दोनों भी समझ में आया? फिफ्टी एट कैसे आया समझ में नहीं आया? ठीक है, मैं समझाती हूँ एक बार फिर से.
तो 34 26, देखो 34 है ये और यहाँ पे 26 है, ठीक है। 34 का बाइनरी कैसे आया प्रीति, वो तो समझ में आया आपको? तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 0 0 1 0, और 26 का कितना आएगा, 0 1 1 0 1 0, ठीक है। अभी हम और अप्लाई कर रहे हैं, और 0 और 0 0, 1 और 1 1 0 1 1 1, इतना आ गया, ठीक। अब इसको, ये बाइनरी में आ गया है ना, इसको अपने को क्या करना है, डिजिट क्या बोलते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो तुम सबसे पहले ऐसे लिख दो, फर्स्ट यू राइट लाइक दिस। तो अब ये 2 के पावर, देखो जीरो वाला चीज तो कट हो जाएगा, इसको लेना नहीं है। तो ये 2 का पावर है ना, तो 2 का पावर 1 कितना होता है, 2, प्लस 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 इज 16, 2 का पावर 5 इज 32, इसको ऐड कर दो। सो 32 प्लस 8 इज 40, 40 प्लस ये कितना होगा, 18 होगा, तो ये 58 आएगा। अभी क्लियर है प्रीति? ओके, सो आई होप एवरीवन इज ओके विद एंड, और ये दोनों भी समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट वन इज बिटवाइज जोर ऑपरेटर। जोर कैसे काम करता है, 1 जोर 1, 0 जोर 0, इसको जोर ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, जोर ऑपरेटर। तो अगर दोनों बिट्स सेम है तो इसका रिजल्ट 0 आता है, और अगर दोनों बिट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आता है। सेम सेम के लिए 0, डिफरेंट के लिए 1, क्लियर है? तो अभी जैसे डेटा अपने पास था, कौन सा था, यही वाला, कौन सा है, 43 जोर 37 करना है, अगर 43 जोर 37, सो विल यू ऑल ट्राई एवरीवन एंड लेट मी नो 43 जोर, ये देखो यहाँ पे आपके पास बाइनरी डेटा है, इस पे जोर अप्लाई करके मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। डन, कितना आ रहा है आंसर? 14 is the answer which Prachi is getting. Others, please confirm आपको कितना आंसर आ रहा है? Okay, I'll write over here, क्योंकि नीचे ज्यादा जाऊंगी तो मुझे डेटा दिखेगा नहीं। So let me take it as 1 0 1 0 1 1 ZOR 1 0 0 1 0 1। तो अभी ये देखो सेम बिट है ना, तो आउटपुट कितना आएगा, 0। डिफरेंट बिट है, आउटपुट 1। डिफरेंट बिट है, आउटपुट 1 1 0 0। अंडरस्टूड एवरीवन? ये आउटपुट समझ में आ रहा है सबको?
Yes, Prachi is saying yes. What about others? Preeti, वल्लभ, ओमकार, सबको क्लियर है? तो अभी क्या करना है अपने को? 0 1 2 3 आगे का लिखने की जरूरत नहीं है. So this is 8 plus 4 plus 2. So that is equal to 14. So 14 is the right answer. Understood everyone? चलो अभी समझ में आया कि नहीं, एक बार और वेरीफाई करते हैं. Do this one. 34. and 26. So 34 का कितना है? 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0. ठीक है, तो सेम बिट है तो 0, सेम बिट है तो 0 0, डिफरेंट बिट है तो 1 1 1. ओके, तो 0 1 2 3 4 5. So this will be 32 plus 16 plus 8. So this will be 56. 56 is the answer. आ रहा है क्या सबको समझ में? If everybody is able to understand, can you please type U for understood everyone? और अगर नहीं समझ में आया है तो R for repeat भी टाइप कर सकते हो. ठीक है, I request everyone to please communicate and tell me whether you are able to understand it or not. यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया? Okay, good. So let me just save it. Okay, now going ahead with the next one. So there is this is called as a right shift operator. So right shift operator कैसे काम करता है कि समझो अपने पास है डेटा 0 0 0 1 0 1 0 0 1 सपोज. तो अब अभी मुझे क्या करना है? बिट्स को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना है. तो हर बिट एक एक बिट आगे ऐसे मूव करेगा. सो जस्ट आप ऐसे समझो हर बिट को हम पुश कर दे रहे हैं. तो एवरी बिट इज गोइंग टू टेक द पोजिशन ऑफ द अदर बिट. तो ये वाला बिट कहाँ जाएगा? इसको सीधा गिरा देना है, मतलब ये लॉस्ट हो जाएगा. समझ में आया? जस्ट इन सबको धक्का दिया तो ये वाला बिट लॉस्ट हो जाएगा और हर बिट अपने आगे वाले बिट की जगह ले लेगा. सो व्हाट इज द आंसर यू आर गोइंग टू गेट? 0 0. ये दो बिट इधर आ गए, इधर का बिट 1 हो जाएगा. 0 1 0 0 0 और जो लास्ट का बिट था वहां पे 0 आ जाएगा. एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? राइट शिफ्ट समझ में आया? जस्ट एक एक बिट राइट मूव करना है. जो लेफ्ट मोस्ट था वहां पे 0 आ जाएगा और जो राइट मोस्ट था वो लॉस्ट हो जाएगा. So let's try with some number. So let's say I have a number maybe 13. So 13 को मुझे राइट शिफ्ट करना है 2 से. तो पहले 13 का बाइनरी लिखना पड़ेगा. So 13 का बाइनरी कैसे निकालेंगे हम? 2 6 12. So we will get, sorry 8 लिखा तुमने तो मैं भी 8 लिखने चलूंगी. 1 1 0 1. अब क्योंकि ये 4 ही बिट्स बन रहे हैं तो आप क्या करो, यहाँ पे 1 2 3 4. सो वी विल राइट इट इन अ बाइट फॉर्मेट. नाउ इट इज सेइंग शिफ्ट बाय 2 टाइम्स. तो हम एक साथ दो नहीं, हम एक एक करके शिफ्ट करेंगे. तो पहले एक बार शिफ्ट करो तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4. अब यहाँ पे देखो 0 1 1 0. और एक बार शिफ्ट करो तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5. अब ये ऐसे शिफ्ट हो गया 0 1 1. आर यू विथ मी नाउ? So this is the binary equivalent of 3. आया समझ में सबको?
राइट शिफ्ट कैसे काम करता है समझ में आया? एक नंबर दूं, सॉल्व करोगे? तुम डिसाइड करो नंबर, यू सजेस्ट नंबर। छोटा ही नंबर लो, बड़ा नंबर मत लो। Shall we go for 21? Yes. So take 21 and perform right shift by 2 bits. और आंसर मुझे बताओ। प्राची को तो एकदम खटाखट समझ में आ रहा है, गुड जॉब प्राची। प्रीति का भी आ गया, वल्लभ का भी आ गया, वेरी गुड। 5 आंसर आ रहा है। प्राची और प्रीति का कितना आंसर आया? 5 आ रहा है क्या? तृप्ति का भी हो गया, ऑसम। तो अभी 21 का बाइनरी कितना आएगा बताओ। So first we will calculate the binary of 21. So we will get 10101. Yes, that is the binary. तो ये 5 है ना, तो मैं इसमें सिर्फ 3 बिट्स ऐड कर रही हूँ। नाउ वी परफॉर्म द शिफ्टिंग ऑपरेशन। तो 1 2 3 तो रहेंगे ही, फिर ये ऐसे आएगा 1010। वन मोर शिफ्ट। सो 1 2 3 4 101। So I got the answer as 5. ठीक है? So the answer for this will be 5. I hope everybody has understood this much. आज का सारा सेशन समझ में आया तो यू फॉर अंडरस्टूड टाइप करो। फिर जब इसको पाइथन में प्रोग्रामिंग लिखना शुरू करेंगे तो फिर हम सीधे आंसर देखेंगे, है ना। वहां पे तो ये पीछे क्या चल रहा है वो अपने को पता नहीं चलेगा। सो दिस इज जस्ट द कैलकुलेशन फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे। ये थोड़ा अपने मन से कुछ नंबर्स लेके 1 2 बार बस प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज मोर देन इनफ। बस उसके आगे नहीं करना है, ठीक है। So just do a little bit of practice with these numbers. तो कल ये बिटवाइज कंप्लीट करेंगे और कल पाइथन का हम एडिटर वगैरह सब इंस्टॉल करेंगे एंड दीज प्रोग्राम्स वी विल गो अहेड एंड ट्राई आउट इन पाइथन। ऑलराइट, तो फिर ये जो हमने कैलकुलेशन किया है वो पाइथन में रन करके देखेंगे कैसा आउटपुट आ रहा है। फेयर इनफ एवरीवन? चलो देन, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे एवरीवन एंड टेक केयर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।